Okay. Let's start with today. I am going to start the next part of this lecture paper P2. Okay, so where to start? Okay, now the last thing we do is there are basically three types of thing. So first is editor, translator, and debugger. So editor is one which produces the source code in high level language. The translator converts the source code into object code, and debugger is a debugger uh, is basically is used to test the program or detect the error. Okay, so these are basically three main modules of my C++ or programming. Okay, हेलो सर आवाज yes, आ रही है आपको yes. Are you hearing me? Hello, Abdullah, are you with me? Okay, the next thing is development model. So what is development model and how we start with these types of models? So uh, development models are basically classified in three types. The first type of developer model is my waterfall model. So this is first model. Second is my iterative इसलिए model. मुझे आ रही है आपकी Okay. Second is my iterative model, and third is my pawn application or basically application development model. Okay, so development model में पहली चीज क्या आती है? That is why waterfall model. Waterfall model के अंदर हम आते हैं तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या चीज आती है. The first thing begins with my analysis. Okay, what is analysis or how basically we analyze things? Okay, so first major thing is my analysis. Second is my design. Okay, third is my coding. Okay, fourth is my testing, and fifth one is maintenance. So I will write here for waterfall model. It is A D C T M. You have to remember like this: ADTCM. Okay, A mean analysis, D mean design, C mean coding, T mean testing, and M mean maintenance. Okay, so principles are basically uh, only at the start, at the end we use basically linears as the state. Linear mean that we have to use a simpler code or design a code with respect to my design. Okay, so these are basically in waterfall model. मेरे पास चार बड़े basically five steps हैं. पहले में हम analyze करते हैं, which is analysis. D is for design, third is coding, fourth one is testing, and fifth one is maintenance. So this is my waterfall model. क्या है? waterfall model है. अच्छा जी, what are the benefits? इसकी benefits क्या हैं और इसके drawbacks क्या हैं? Okay, so benefits में सर आते दोबारा हैं. रिपीट करेंगे सर वाटरफॉल मेथड के बारे में Okay, I will describe it again. Just give me 5 minutes. ओके, वाटरफॉल मॉडल के अंदर मेरे पास जो मेन चीज आपने याद रखनी है रिमेम्बरेंस के लिए, वो ये है कि ये चीज याद रखनी है: ए डी सी टी एम. okay, this is a way that you basically memorize the steps of what waterfall model. So what is a क्या होता है मेरे पास? A is the analysis. A is analysis. Okay, what we analyze. Okay, so first thing is analysis. D is design. C is code. T for testing. And M for maintenance. Okay, so these are basically five major things to do. Again, first step is my analysis. सबसे पहले एनालिसिस करते हैं.
सेकंड इज माय डिज़ाइन, डिज़ाइन की तरफ आएंगे हम। थर्ड इज उसको डिज़ाइन को हमने क्या करना है, कोडिंग की तरफ लाना है, यानी कि उसे कोड करना है। फोर्थ वन इज टेस्ट करना है उसको, और फिफ्थ वन इज इट्स मेंटेनेंस। तो ये मेरे पास 5 बड़े स्टेप्स हैं इन एनालिसिस इन वाटरफॉल मॉडल। ठीक हो गया। अब इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, सो बेनिफिट्स आर इजी टू मैनेज एंड अंडरस्टैंडेबल एंड यूज, यानी कि ये बहुत आसान है आपके पास, इसको मैनेज करना भी बहुत आसान है और इसे अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान है। ठीक हो गया। सेकंड वन इज स्टेजेस डू नॉट ओवरलैप एंड कंप्लीट एट इट्स ओन टाइम, कि एक स्टेज पहले ओवर होगा, लेट्स से मेरे पास 5 स्टेजेस हैं इसके अंदर, तो वन बाय वन एक एक स्टेज होगा। ठीक है, कोई स्टेज ओवरलैप नहीं होगा। थर्ड वन इज वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोग्राम्स। ठीक हो गया अब्दुल्ला। आई हैव थ्री यस यूज, सर। थ्री, प्लीज राइट इट डाउन, please write it down that there are three लिख ही रहा हूँ benefits. सर। Three benefits. First benefit is easy to manage, understand and use. There is, इसको मैनेज करना आसान है, इसको अंडरस्टैंड करना आसान है और इसको यूज करना आसान है। सेकंड इज स्टेजेस डू नॉट, कि हर एक स्टेज एक आइडेंटिकल है, यानी कि हर स्टेज के अंदर एक स्पेसिफिक काम हो रहा है। दे डिडंट जो है ये ओवरलैप नहीं करते। सो स्टेजेस डू नॉट ओवरलैप एंड कंप्लीट एट इट्स ओन टाइम एंड वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोग्राम। अब हम इसके ड्रॉबैक्स की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, अब इसकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि अगर मैंने लेटर ऑन, यानी कि बाद में कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसमें ऐड नहीं होती। सो डिफिकल्ट टू चेंज द रिक्वायरमेंट एट अ लेटर स्टेज, यानी कि बाद में अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है प्रोग्राम के अंदर, तो बाद में प्रोग्राम में ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बाज़ होती भी नहीं है मेरे पास। ठीक है। सेकंड इज subject to change programs are not suitable, कि subject to change program, कि जो subject हम लेते हैं उसको हम change करेंगे तो this is not suitable in my this model। ठीक है। And working program is produced late uh, in the light cycle, या इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम प्रोड्यूस होता है वो एट द एंड प्रोड्यूस होगा मेरे पास वर्किंग प्रोग्राम, एंड नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया। तो ये 4 इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके, सो लेट दिस इज द फर्स्ट मेथड। इस मेथड को मैं दोबारा समराइज करता हूँ। ये बेसिकली मेथड है मेरे पास, इसे हम कहते हैं वाटरफॉल मेथड। वाटरफॉल मेथड के अंदर मेरे पास 5 बड़ी चीजें आती हैं, ADCTM। ठीक है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इसकी हमने फिर बेनिफिट्स पढ़े, इसके ड्रॉबैक्स हमने पढ़े। अब हम आते हैं आइटरेटिव मॉडल पे। आइटरेटिव मॉडल क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर पहला, फर्स्ट थिंग इज, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाटरफॉल, एक्सटेंडेड वाटरफॉल, फर्दर एक्सटेंडेड एंड फाइनल वाटरफॉल। आइटरेटिव मॉडल बेसिकली क्या करना है, हमने अपने आइटरेटिव मॉडल बेसिकली वाटरफॉल को ही आगे लेके जाना है। वो इस तरह होता है कि पहला हमने कोई डिजाइन कर लिया, लेट अस से मेरे पास यस, इसके अंदर आइटरेटिव मॉडल के अंदर जो बेसिक स्टेप्स कितने हैं पहले आपको बताना चाहिए, 4 होंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट वाटरफॉल। फर्स्ट वाटरफॉल मीन उसी तरह आपने सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस करना है, डिजाइन करनी है, कोडिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है और मेंटेनेंस करनी है। ठीक है। इफ सक्सेसफुल देन मूव फर्दर। अगर ये सक्सेसफुल है या कामयाब हो गया, देन मूव्स फर्दर। ओके, सो सेकंड विल बी एक्सटेंडेड वाटरफॉल, यानी कि इसी को एक्सटेंडेड करना है। एक्सटेंडेड बेसिकली क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड का मतलब ये है एक्सटेंडेड द डेवलपमेंट इफ गोइंग सक्सेसफुल। अगर मेरे पास सक्सेसफुल है मेरा फर्स्ट वाटरफॉल, इसको फिर हमें एक्सटेंड यानी कि इसे बढ़ाना है, उसी साइकिल में चीजें चेंज करनी है। फिर एक बार एक दफा करने के बाद दोबारा थर्ड स्टेप में हमने, ये सेकंड स्टेप है, फिर फर्दर एक्सटेंडेड, यानी कि उसके बाद हमने और इसे एक्सटेंड करना है। यानी कि जितने पैरामीटर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं हम ऐड करेंगे, एंड एट द एंड लास्ट में हमने क्या करना है, इसमें इसको इसकी एक फाइनल वाटरफॉल आ जाएगी जो मेरे पास एक एंड रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। सो इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप, आप लिखेंगे यहाँ पे इट इज फर्स्ट वाटरफॉल, फर्स्ट वाटरफॉल, फर्स्ट वाटरफॉल,
then it is extended waterfall, extended waterfall, then further extended, then it is further extended, further extended, and fourth one is final waterfall. फाइनल वाटरफॉल। ठीक हो गया, ये 5 स्टेप्स आ गए मेरे पास, 4 स्टेप्स आ गए इसके। ठीक हो गया। और फर्स्ट वाटरफॉल कब सक्सेसफुल होगा, जब फर्स्ट वाटरफॉल से हम एक्सटेंडेड में कब आएंगे, जब ऑल जो मैंने मूव्स की हैं वो सक्सेसफुल हुई हैं। अच्छा जी, दीज आर द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स पे आते हैं, तो ये क्या होता है, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एज द प्रोग्राम डेवलप, लाइफ साइकिल इज रिपीटेड, कि इसमें हम रिपीट करते हैं अपने लाइफ साइकिल्स को। हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एज पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी शोन टू द कस्टमर आफ्टर एवरी इटरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस से बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेप 1 2 3 4, तो हम स्टेप बाय स्टेप अपना काम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अपने अपने क्लाइंट या कस्टमर को देते हैं कि दिस विल बी, कि ये हमने यहाँ तक पहुंचे हैं स्टेप बाय स्टेप। सो इस पे सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो क्या। अच्छा, फिर इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की तरफ आ गए। बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट यही है कि इजी टू टेस्ट एंड डिबग, मोर फ्लेक्सिबल एज इजियर टू अल्टर रिक्वायरमेंट्स, कि हम इसमें रिक्वायरमेंट्स को अल्टर कर सकते हैं। कस्टमर इन्वॉल्व एट ईच आइट्रेशन, देयर फॉर नो सरप्राइज व्हेन द फाइनल सिस्टम डेवलप्ड और डिलीवर्ड। ड्रॉबैक्स में है, होल सिस्टम नीड्स टू बी डिफाइंड एट स्टार्ट। ठीक है, हमने अपने सब सिस्टम को स्टार्ट में ही डिफाइन कर देना है। ठीक है, नीड अ गुड प्लानिंग ओवरऑल, क्योंकि प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो मेरे सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट ऊपर करेंगे जरा। एंड नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट सिंपल प्रोजेक्ट्स। ऊपर किधर ऊपर करूँ करेंगे सर, अब्दुल्ला। एक मिनट के लिए प्रिंसिपल्स दिखाएं जरा मुझे। अच्छा, प्रिंसिपल्स, यस दिखाना दिस, जरा। देखें। तो फिर जरा फर्स्ट इज, कंप्लीट कर लो, 2 मिनट लगेंगे सर। ओके ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फिर उसके बाद आप ड्रॉबैक्स लिख लीजिएगा। कर ले सर आगे। ओके, प्लीज इसे राइट कर लें, ये बहुत जरूरी है चीजें। बेनिफिट्स एंड, ये 2 3 मिनट दे रहा हूँ, ये सारा एज इट इज लिखें प्लीज, हरी अप अब्दुल्ला। यस सर। कर ले सर। ओके ओके,
अच्छा जी, सेकंड वन हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड इज माय रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक हो गया। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि आई हैव मल्टीपल टीम्स। ठीक है, होता वही है, वाटरफॉल वाला प्रोसेस होता है, लेकिन मेरे पास टीम्स होती हैं, टीम 1, टीम 2, टीम 3, जितनी मर्जी टीम हो सकती है। ठीक है, ये सैंपल के तौर में मैंने 3 टीम्स ली हैं। और जैसा कि मैंने वाटरफॉल में आपको बताया था, वाटरफॉल क्या करता है, ADCTM, दैट इज एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये 5 प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप करेगा। टीम 1 भी करेगी, टीम 2 भी करेगी और टीम 3 भी, और एज इट इज जितने जितने मेंबर्स हैं वो सारे करेंगे। ठीक हो गया। तो प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स एंड ईच मॉड्यूल हैज वन टीम एंड इट्स ओन वाटरफॉल। तो ये मेरे पास डेफिनेशन आ गई रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। अगेन, program is divided into modules and each module has one team and its own waterfall। ये मेरे पास इसकी बाइनरी डेफिनेशन आ गई। ठीक हो गया। प्रिंसिपल्स पे आया जाए तो इसके जो है मिनिमल प्लानिंग है, यानी कि थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। यूजेस प्रीवियसली रिटन कोड। देखिए, मैं प्रीवियसली रिटन कोड जो है, जो टीम 1 जो कोड लिखेगी वही टीम 2, टीम 3 उसको बार बार से जो है टेस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एंड थर्ड इज हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। तो ये 3 चीजें इसके मेन प्रिंसिपल्स में आ जाएंगी। अब बेनिफिट्स में आते हैं तो रिड्यूस ओवरऑल डेवलपमेंट लाइन, रैपिड फीडबैक information informs the development, very flexible as requirement evolve from feedback, and modification is easier because each part must has work independently। देखिए, हमारे पास डिफरेंट हर पार्ट का अपना अपना एक कोड है, अपना सिस्टम है। तो वो उसको मॉड्यूल करना या उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है। ड्रॉबैक में आते हैं, सिस्टम अंडरगो सिस्टम अंडर डेवलपमेंट नीड्स टू बी मॉड्यूलर। ठीक है, नीड स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ स्किल्ड डेवलपर्स, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट सिंपल प्रोजेक्ट्स। तो ये मेरे पास 3 इसके ड्रॉबैक्स आ गए। ठीक है, काइंडली एज इसे जल्दी जल्दी लिखें, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को। ठीक है अब्दुल्ला, ये रैपिड एप्लीकेशन है ना? ये रैपिड एप्लीकेशन है अब्दुल्ला, ये डेफिनेशन है रैपिड एप्लीकेशन की, ये लिखी है आपने? हाँ, ऊपर नहीं लिखी सर आपने, वो बस। ये देखें, बस ये देखें, प्रोग्राम इज, ये रैपिड एप्लीकेशन लिख लें, की डेफिनेशन लिख लें और फिर प्रिंसिपल लिख लें। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, जल्दी जल्दी करें इसे, फिर आगे इसके यूजेस एंड ड्रॉबैक्स। हरी अप। हो गया सर। ओके, ये आप ये ले लें, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स में से थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। ग्रीन में बेनिफिट्स लिखे हुए हैं और जो रेड में है ये ड्रॉबैक्स हैं। So Mandeep Singh.
आपने कर लिया अब्दुल्ला? नहीं सर, अब वो ड्रॉबैक्स लिखने हैं अभी। अच्छा, हो गया सर, ओके प्रोसीड कर सकते हैं आप। ओके। अच्छा जी, फिर मेरे पास आते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। ये बेसिकली ये क्या होती है? दीज आर सर्टेन स्किल्स दैट अ पर्सन हैज इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है? दोज कैन बी यूज इन अनदर लैंग्वेज। ट्रांसफरेबल स्किल्स का मतलब ये होता है कि लेट अस से कि आपको पाइथन की अच्छी समझ है, यानी कि आप अच्छा कोड बना लेते हैं पाइथन में, तो उसको आप ट्रांसलेट कर लेते हैं जावा पे, तो ये क्या होगी? ट्रांसफरेबल स्किल्स इन्हें कहते हैं। अच्छा, ये बेसिकली वही है, एक एग्जांपल एक्सप्लेनेशन से समझाई हुई है कि पाइथन एक बंदे को आती है तो उसका मतलब ये है कि वो जावा में भी जा थोड़ा बहुत काम कर सकता है विद दिस ट्रांसफरेबल स्किल। यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड दी अदर लैंग्वेजेस, और उससे ये होता है कि आप दूसरे प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, लेट अस से आप क्या करते हो, आप पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हो और वही कॉपी पेस्ट कर देते हो जावा में, तो जावा उसमें एरर दे देता है। रीजन इज कि आपने क्या किया होता है कि उसको लिखा नहीं होता सही, तो वो जब एरर जनरेट करता है तो आपको पता चल जाता है कि दिस इज दी फॉल्ट, मैं वहाँ सही कर सकता हूँ अपने आप को। तो इस पे जो है, जो मेरे पास ट्रांसफरेबल जो स्किल्स हैं, इसमें मेरे पास सबसे पहले क्या आती है? डिक्लेरेशन आ जाएगा, उस तरह असाइनमेंट, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटिशन जिसको हम इटरेशंस कहते हैं, सब रूटीन एंड पैरामीटर्स पास बिटवीन मॉड्यूल एंड इनपुट आउटपुट। ठीक हो गया? तो अगर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मेरे पास आता है एन एल्गोरिदम इज, ये मेरे पास एक आगे, यस, अच्छा, an algorithm is implemented in a HLL. Changes are required, and the program is given to Albert, who is experienced programmer but not familiar with language that has been used. Explain why Albert would be able to understand the program. तो इसका आंसर ये आता है, आंसर ये हम लिखते हैं इसमें, he would use the transferable skills to understand the new program. समझ आ गई आपको? जी। Acha. He could recognize basic control structures in the language such as loops, selections, statements आ जाएंगे और declaration आ जाएगी. He could recognize basic control structures in the language such as loops. इनको recognize करेगा. He could read the commands, meaningful variable names. ठीक हो गया? तो ये बेसिकली कहाँ से आएगा? ये आएगा ट्रांसफरेबल स्किल से आएगा इसके पास। अच्छा, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा जी, सबसे पहले इसमें आ जाता है जो करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक हो गया? करेक्टिव मेंटेनेंस आ जाएगा, परफेक्टिव मेंटेनेंस आ जाएगा, अडेप्टिव मेंटेनेंस आ जाएगा, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ जाएगा। तो मेंटेनेंस कितनी टाइप्स की हैं? 4 किस्म की हैं। मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट वन, दैट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अकर्स व्हेन टेस्टिंग रिवील्स अ फॉल्ट। जब भी मेरे पास फॉल्ट आ जाएगा या एरर आ जाएगा इन दी प्रोग्राम एंड दिस इज करेक्टेड, तो इसे हम कहेंगे करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस इज व्हेन एरर्स आर फाउंड एंड फिक्स्ड। यानी कि करेक्टिव मेंटेनेंस में ये होता है अब्दुल्ला कि कोई प्रोग्राम लिखता हूँ मैं, उसमें एरर आ जाता है और उस एरर को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। What are the reasons for using corrective maintenance? The reason is to amend the algorithms to eliminate errors. This is the main reason. ठीक हो गया? Second type is adaptive maintenance. Adaptive maintenance is a term used to change the mode to a person in response to a specification changes as a result of changes to requirements और अवेलेबल टेक्निक्स। तो अडेप्टिव का मतलब ये हुआ कि कैसे आप अडेप्ट करते हैं एक
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उसे बेसिकली कहते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस। व्हाट आर द रीजंस फॉर यूजिंग अडेप्टिव मेंटेनेंस, ये क्वेश्चन आता रहता है। इन in response to specification changes arising from rules and regulations के हर टाइम, लेट से आप अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये पाइथन में कर रहे हैं अगर, तो आज से 20 साल पहले जावा यूज होता था, तो जो भी प्रोग्राम सिस्टम लेट से फॉर एग्जांपल यूज होता था, और सही करेक्टिव में लिखने से जरा। तो ये बेसिकली अडेप्टिव मेंटेनेंस में आ जाता है। अच्छा, मैं अडेप्टिव अडेप्टिव अडेप्टिव। ड्यू टू टाइम ये मैं आपको शेयर कर दूंगा लेक्चर, तो आप वहां से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहिए। फिर उसके बाद आ जाएगा परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस बेसिकली मैनली डील्स विद द इम्प्लीमेंटिंग न्यू और चेंज यूजर्स रिक्वायरमेंट। यानी लेट्स से आप क्या करते हैं, आप कस्टमर हैं और आप कहते हैं सर आई हैव अ साइकिल, सिंपल साइकिल, इसको आपने क्या करना है, मॉडिफाई करना है और एक गियर साइकिल बनानी है आपने, तो ये क्या होगा, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू डिजाइन आ जाएगा, इसे कहते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स मेकिंग फंक्शनल एनहांसमेंट। ठीक हो गया कि जो फंक्शनल जो मेन चीजें हैं उनमें एनहांसमेंट करता है। एक एग्जांपल इसकी भी ये है कि जो पुराने टीवी होते थे मेरे पास, ठीक है, मॉनिटर टाइप, आजकल क्या यूज हो रही है, एलसीडी यूज हो रही है, तो ये बेसिकली परफेक्टिव मेंटेनेंस है। ओके, थर्ड पॉइंट इज this includes enhancing both the function and efficiency of code, and basically it enhance the it changing the functionality as per as user change। let us say आप कहते हैं कि सर हमें परफेक्टिव मेंटेनेंस का क्या ज़रूरत है। देखिए, आज से लेट अस से मैं कहता हूँ कोई सॉफ्टवेयर आया 2010 में, उसमें उसमें फीचर्स थोड़े हैं, और विद रिस्पेक्ट टू 2022 जो आज का उसका वर्जन है, उसमें क्या होगा, इन्हेंसमेंट है टेक्नोलॉजी की, यानी कि कोडिंग उसमें ज़्यादा है, कोडिंग ज़्यादा हुई तो उसको मतलब उसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो इसे हम कहते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेसिकली इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एक्टिविटीज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एरर। अब क्या करते हैं, पहले से ही ये नहीं करते कि चीज खराब हो जाएगी तो उसकी मेंटेनेंस करेंगे, आप ये करते हैं कि पहले से ही उसकी मेंटेनेंस कर देते हैं, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव, यानी कि प्रिवेंशन जो है आप कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके सिस्टम में एरर नहीं आता। नहीं आएगा सर, सुने। जी सर। इससे पहले मैं लिख लूं जरा ऊपर सारे जो एरर्स हैं। एरर्स नहीं, वो जो सॉरी वो जो मेंटेनेंस है सारी लिख लो एक बार पहले। ओके ओके अब्दुल्ला, मैं आपको ये लेक्चर सेंड करूंगा रिकॉर्डेड सेशन, तो वहां से सब अभी कुछ कुछ आप लिखने आराम की से, जरूरत नहीं फिर। हाँ आपको लिखने की, अभी अभी सिर्फ समझ लें, सुनो। अभी आप समझ ओके। लें, तो फिर उसके बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा, आज ही सेंड कर दूंगा, तो वो आप रात में देख लीजिएगा और वो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। मैंने क्योंकि आज ये लेक्चर खत्म करना है सारा P2 का सर, टाइप्स ऑफ एरर्स में आते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर एक बहुत ज्यादा एक अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे पास P2 के अंदर, तो मेरे पास बेसिक बेसिक जो है 3 टाइप्स ऑफ एरर आते हैं। एक को कहते हैं हम सिंटैक्स एरर, एक को कहते हैं हम लॉजिकल एरर, और तीसरा होता है रन टाइम एरर। तो व्हाट इज सिंटैक्स एरर? Syntax error are small grammatical mistakes, sometimes limited to a single character। ठीक हो गया। Syntax errors क्या होता है, grammatical mistake की वजह से होता है। For example, a missing semicolon at the end of the line or an extra bracket at the end of the function may produce a syntax error। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई सिंटैक्स एरर क्या होता है? यस सर। यस। अच्छा जी। इसके बाद आ जाएगा मेरे पास लॉजिक एरर। लॉजिक एरर कैसा होता है? लॉजिक एरर बेसिकली होगा मेरे पास, प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, एरर्स इन दी लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। लॉजिक का मतलब हुआ, लेट अस से आपने करना है ऐड, तो 5+3, जब तक आप ऐड को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, तो वो 2 नंबर सम नहीं हो सकते। तो 2 नंबर्स को सम करने के लिए बीच में किसकी जरूरत है? प्लस की जरूरत है। तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू लॉजिक एरर। रन टाइम एरर में क्या आएगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एन इनवैलिड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन बेसिकली एग्जीक्यूट करता है। अटेम्प्ट्स टू डिवाइडेड बाय 0, सो प्रोग्राम क्रैश। तो रन टाइम में क्या होता है, प्रोग्राम मेरे पास क्रैश हो जाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के बड़े एरर्स हैं। ओके, अब आ जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग।
ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मेरे पास आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है मैच एक्सपेक्टेड बेसिकली आंसर टू एक्चुअल आंसर। हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड आंसर को एक्चुअल आंसर के साथ कंपेयर करते हैं। अब अ पर्सन डज नॉट नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। स्ट्रक्चर ऑफ कोड की जरूरत नहीं होती इसमें। अ पर्सन चूजेस नॉर्मल बाउंड्री एंड एरर एररनेस डेटा। एररनेस डेटा का मतलब होता है कि वो डेटा जिसके अंदर बेशक बेसिकली थोड़े बहुत एरर्स भी हों। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर तीन चीजें हैं मेरे पास, कि मेरा जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो एक्चुअल आंसर के बराबर होना चाहिए, हमें असल कोडिंग की जरूरत नहीं होती, और एक नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन मेरे पास पर्सन को चूज कर सकता है। सेकंड आता है वाइट बॉक्स, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की है। सेकंड इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। टेस्ट एवरी पॉसिबल लॉजिक पाथ थ्रू द कोड। A trace table is often used during the program. तो वाइट क्या क्या करते हैं, लॉजिक पाथ को हम यूज करते हैं, और सेकंड कोई भी बेसिकली ट्रेस टेबल जो है वो यूज होता है फॉर वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब आ जाता है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है? इन हाउस टेस्टिंग, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर यूज होता है अल्फा टेस्टिंग। टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर्स इन हाउस अदर देन द डेवलपर डेवलपर इन एक्चुअली बिल्ड द सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, लेट अस से हम कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर मॉडल हुआ है अमेरिका के अंदर, जो एक कंपनी ने मॉडल किया है, उसके निस्बत यू आर, अगर आप एक डेवलपर हैं और आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है और आप अपना एक कोड डेवलप करते हैं उसके अंदर, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। ठीक हो क्या? अच्छा, इसके बाद होता है बीटा टेस्टिंग। आउट ऑफ हाउस टेस्टिंग performed by group of people. Those are assigned to find out bugs या errors in the code. तो ये बेसिकली कौन करते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हमने काम दिया होता है कि इन्होंने एरर्स और बग्स फाइंड करने हैं मेरे कोड से। फिर एट स्टफ टेस्टिंग। स्टफ टेस्टिंग को हम कहते हैं सिंपल और डमी मॉड्यूल रिटर्न टू सिमुलेट द मॉडल। ओके, एंड टेस्ट कैरिड आउट ऑल द मॉड्यूल्स, जिसे हम मॉड्यूल्स को सब रूटीन्स भी कहते हैं, हैव बीन रिटन। तो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी मेरे पास स्टफ टेस्टिंग के अंदर। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग की क्या बात है? इज द टेस्टिंग ऑफ एनी सेपरेटली रिटन मॉड्यूल्स टू इंश्योर दैट दे वर्क टुगेदर। तो हम एक सेपरेट हर रिटन कोड को टेस्ट करते हैं, ताकि जब ये मॉड्यूल की तरह मॉड्यूल में या एक पूरे फ्रेज में लिखा जाए तो एक पूरा कोड रन हो। तो ये बेसिकली होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं किसकी? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। जैसे पहली आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरी वाइट बॉक्स, तीसरी अल्फा टेस्टिंग, चौथी बीटा टेस्टिंग, पांचवी स्टफ टेस्टिंग, और छठी आ जाएगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा जी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंबाइनिंग एंड टेस्टिंग बोथ इफ द मॉड्यूल इज मिसिंग। अच्छा, स्टफ टेस्टिंग की एग्जांपल हम आते हैं, देखें। आई हैव अब्दुल्ला एंड अली एंड अहमद। अब्दुल्ला मेरे पास मॉड्यूल 1 हो आप, मॉड्यूल 2 इज अहमद एंड मॉड्यूल 3 इज अली। अब क्या होगा कि अब्दुल्ला और ये इन तीनों की कनेक्शन है और डिस्प्ले नहीं हो रहा, यानी कि ये बेसिकली स्टफ टेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल डमी मॉड्यूल रिटर्न टू सिमुलेट द मॉडल। तो ये डमी मॉड्यूल्स हैं जो हम सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी टेस्टिंग को बेसिकली वी रेफर एज स्टफ टेस्टिंग। ठीक हो गया? फिर आता है नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। It is used for the complicated or sorry used for completed program to prove that the customer or client that will works as required, and end user testing है इसके, इसे कहते हैं हम acceptance testing को। अच्छा, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या होता है मेरे पास? ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रेन मेंटेनेंस सिस्टम, और फिर उसमें एक छोटा छोटा एक टीम बना देते हैं। तो स्टेप वाइज का क्या मतलब होता है? देखो, एक पूरा सिस्टम अगर मैं, ये मेरा कोड है, और इस इतना बड़ा कोड एक ही दफा में कर रहा हूँ, और इसका एक क्लस्टर
क्लस्टर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रेन मेंटेनेंस टेस्टिंग। लेकिन अगर मैं सेपरेट कर रहा हूँ, स्टेप्स बना रहा हूँ, 1 स्टेप, 5th 6, ये सारी, ये क्या होगा, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट और स्टेप वाइज टेस्टिंग, ठीक हो क्या। अच्छा जी, ओके। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा व्हाट इज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एल्गोरिथम to a level of sufficient detail into smaller parts from which it can be programmed. Not each subtask can be considered as a modular that is refined separately. Modular or subroutine can be either be a function or a procedure. What are the uses of subroutines in a program? To perform a frequently used operation within a program that can be called when needed, or that can be reused by another program. Why it is good procedure to construct the program using modules to make more manageable, understandable solution, and subroutine or module may be independently tested. Program easier to maintain. What are the advantages of subroutines? Subroutines basically allows to be called into multiple places. Subroutines may tested independently. If the task changes, the changes need to be made only once, reduces unnecessary duplication, allows team to work on difficult parts. Okay, this is procedure. Procedure क्या एक sequence of test है given and that is given an identifier and can called to perform a specific task. और function क्या है, basically step of steps, and that is used to perform a typical task. Okay. Describe two-way methods of passing the parameters between modules. So first is by value and by reference. So by value क्या है, a copy of variable itself is passed and original values are changed. और by reference क्या होता है, the address of the variable is passed and original value is changed. तो ये मेरे पास आ जाएंगी. State how structured programs support the implementation of subtask. तो ये subroutines हैं, functions हैं, procedure हैं, parameters आ जाएंगे. So that is the end of my theory part P2. Hope you understand. और inshallah I will send this lecture. मैं अभी आप upload कर देता हूँ. और any question regarding this lecture, अब्दुल्ला? नहीं सर, बस मैं ये आप हमारा P2 की थ्योरी कंप्लीट हो गई है आज. और प्रोग्रामिंग भी कब से स्टार्ट करनी है? यस इंशाल्लाह कल से करते हैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट. कल तो सर आई थिंक फेस टू फेस आ सकते हैं आप, कल रास्ते खुल गए हैं. I think मंडे से मॉक है मेरा. okay, I will come tomorrow inshallah. I will try to come. Okay, so that's it. और सर एक और बात है, आई थिंक 10 बजे सुबह हमारी ड्राइविंग क्लास होगी. Okay, so you need to I will come and after 4 or 5. Okay, जी सर. so that's it, Abdullah. I will upload it. So that's it, and Allah Hafiz. Take care and Allah Hafiz, Abdullah. Allah Hafiz, have a good time. Okay.